Assalamu alaikum students. Lecture number 19. Students, so far we discussed the fact that a current produces a magnetic field. That fact came as a surprise to the scientists who discovered this effect. Perhaps even more surprising was the discovery of the reverse effect. तो पहले तो साइंटिस्ट इसी चीज पे हैरान थे कि अगर किसी कॉइल या किसी वायर में से करंट पास हो रहा है तो वो अपनी सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन उनके पास एक और उससे ज्यादा सरप्राइजिंग इफेक्ट आ गया और वो था उसका रिवर्स इफेक्ट। और वो रिवर्स इफेक्ट क्या था? अ मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन ड्राइव अ करंट। यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही थी और जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था। दिस लिंक बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड and the electric field it produces is now called Faraday's law of induction. The observation by Michael Faraday and other scientists that lead to this law were at first just basic science. Today, however, application of that basic science are almost everywhere. For example, induction is the basic of the electric guitar that revolutionized early rock and still drive heavy metal and punk today. It is also the basic of electric generator that power cities and transportation lines. And also the huge induction furnace that are commonplace in foundries where large amount of metal must be melt rapidly. Before we get to application like electric generator, we must examine two simple experiments about Faraday law of induction. And let us examine that in two simple experiments to prepare for our discussion of Faraday law of induction. In the first experiment, shows a conducting loop connected to a sensitive ammeter. Because there is no battery or other source of EMF included, obviously there is no current in the circuit.
However, if we move a bar magnet towards the loop, a current suddenly appears in the circuit, and the current disappears when the magnetic stops. And if we then move the magnet away from the coil, a current again suddenly appear, but now in opposite direction. If we experiment it for a while, we would discover the following. Number one, a current appear only if there is relative motion between the loop and the magnet. One must move relative to the other. यानी कि आप या तो लूप को मूव करा लें या मैग्नेट को मूव करा लें, लेकिन करंट सिर्फ उसी वक्त अपियर होगा या उसी वक्त इंड्यूस होगा या उसी वक्त प्रोड्यूस होगा जब आपके लूप और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन मौजूद होगा. And the current disappears when the relative motion between them cease. जैसे ही आप इनके दरमियान रिलेटिव मोशन को सीज कर देंगे, करंट इंड्यूस होना कॉइल के अंदर बंद हो जाएगा. सेकेंड फैक्ट है कि फास्टर मोशन प्रोड्यूस अ ग्रेटर करंट. जितना तेज आप इस मैग्नेट को मूव करें या जितना तेज इस कॉइल को मूव करें, उतना ही ज्यादा करंट उस कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा. थर्ड, if the magnetic north pole move towards the loop cause say clockwise current, then moving the north pole away cause counterclockwise. यानी कि अगर आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल लूप की तरफ लेके आ रहे हैं और काउंटर वाइज करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर आप मैग्नेट के नॉर्थ को इससे दूर लेके जाएंगे तो क्लॉकवाइज करंट सॉरी जब नॉर्थ पोल लेके आएंगे तो क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब नॉर्थ को दूर लेके जाएंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा. मूविंग दी साउथ पोल, अगर मैग्नेट को आप साउथ पोल इस तरफ ले आए, नॉर्थ पोल पीछे ले जाए, तो मूविंग द साउथ पोल टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लूप ऑल्सो कॉज करंट बट इन द रिवर्स डायरेक्शन. मतलब साउथ पोल भी जब आप मूव करेंगे तो आपका करंट आपको मिलेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो नॉर्थ पोल में मिल रही थी उसके अपोजिट मिलेगी. यानी कि अगर आप जब नॉर्थ पोल को लूप के करीब लेके आ रहे तो क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसका मतलब जब साउथ पोल लेके आएंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा. करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. और जहां करंट डिटेक्शन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं एमीटर, जो आपको डायरेक्शन भी दिखा रहा होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ दी करंट भी दिखा रहा होगा. और जो करंट प्रोड्यूस होता है आपके फिनोमेना के अंदर, उसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट. ये तो हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट.
सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने जो सेटअप लगाया उसके अंदर बजाय एक क्वाइल के आपने अब दो क्वाइल लिए। एक क्वाइल तो बिल्कुल उसी तरह है, आप जिसको आपने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है, एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है, और दूसरे मीटर को आपने एक रेजिस्टर और एक स्विच के थ्रू अपनी ईएमएफ या बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। और इन दोनों कॉइल्स के दरमियान कोई फिजिकल कांटेक्ट मौजूद नहीं है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जब हमने कि स्विच एस क्लोज करेंगे, यानी कि सर्किट को मेक करेंगे या सर्किट क्लोज लूप में लेके आएंगे, तो आपका करंट फ्लो करेगा सर्किट कंप्लीटेड होने में, ये राइट हैंड वाला जो लूप है उसके अंदर से। और जैसे ये करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा तो सडनली आपको आपके एम मीटर पे करंट शो होगा। और जाहिर सी बात है इन दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट तो है नहीं, इसका मतलब ये करंट एक इंड्यूस करंट होगा जब आपने स्विच को क्लोज किया। इफ we then open the switch and other sudden brief induced current appear in the left hand loop but in opposite direction। यानी कि जब आपने स्विच को क्लोज किया हुआ था तो जैसे ही आपने उसको ओपन किया तो दोबारा आपको एम मीटर के ऊपर करंट की रीडिंग शो हुई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। We get an induced current only when the current in the right hand loop is changing, either turning on or turning off, and not when it is constant even if it's large। तो आपको इंड्यूस करंट सिर्फ उस सूरत में मिल रहा है, या दूसरे मानों में इंड्यूस ईएमएफ आपको सिर्फ उस सूरत में मिल रही है जब आपका राइट हैंड लूप जो 11 लूप है इसके अंदर करंट चेंज हो रहा है। और अगर करंट चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में चाहे वो 1 एम्पियर का करंट हो या 2 एम्पियर का करंट हो, 5 एम्पियर का करंट हो, कोई ईएमएफ या कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो दो एक्सपेरिमेंट हो गए। एक के अंदर हम जब रिलेटिव मोशन कर रहे थे क्वाइल और मैग्नेट के दरमियान तो करंट इंड्यूस हो रहा था, और दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर एक क्वाइल के अंदर करंट चेंज कर रहे, दूसरे के अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ये फैराडे साहब जानते थे और इन्होंने इसके बारे में लॉ दिया। Faraday realizes that an EMF and a current can be induced in a loop as in our two experiments,
by changing the amount of magnetic field passing through the loop. He further realized that the amount of magnetic field can be visualized in terms of the magnetic field lines passing through the loop. तो ये फैराडे ने एक्सप्लेन कर दिया कि जो ईएमएफ या करंट जो इंड्यूस हो रही है लूप के अंदर, जो हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स में देखा, वो हो रही है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि पास हो रही है उस लूप से जिसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। तो फैराडे लॉ ने या फैराडे ने अपना जो लॉ पेश किया इंडक्शन का, उसकी स्टेटमेंट जो उसने दी वो ये दी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस in a conducting loop is equal to the rate at which the magnetic flux phi b through the loop changes with the time, or EMF I d phi by dt, यानी कि rate of change of magnetic flux in a conducting loop प्रोड्यूस ईएमएफ। और नेगेटिव साइन आप सबको पता है कि लेंजिस लॉ को इंडिकेट कर रहा है, और लेंजिस लॉ ये कहता था कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो अपनी सोर्स को हमेशा अपोज करेगी। The magnetic flux is phi b, ये हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रल b डॉट डेल्टा ए, और ये था मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया ए। If the loop lies in a plane and the magnetic field is perpendicular to the plane, यानी कि आपकी जो लूप जिस पे आपने ईएमएफ मालूम करनी है वो आपके एरिया की प्लेन के ऊपर लाई कर रही हो और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, एंड द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, यानी कि आपका जो कॉइल है वो एरिया के पैरेलल हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो, तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट है कॉस थीटा वो कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 1 होता है तो आपके फ्लक्स आ जाएगा बी है, और ये उस सूरत में होगा जब बी एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर हो, या लूप एरिया की प्लेन के ऊपर लाई कर रही हो और बी यूनिफॉर्म हो। The SI unit of magnetic flux is the Tesla square meter, which is called the Weber. If we change the magnetic flux through a coil of n turns, यानी कि अभी हम एक सिंगल टर्न की या सिंगल कॉइल की बात कर रहे थे, अब हम एक से ज्यादा टर्न्स वाली कॉइल की बात कर रहे हैं। An induced EMF appear in every turn, and the total EMF induced in the coil is the sum of this individual induced EMFs. तो हर कॉइल के ऊपर जो इंड्यूस ईएमएफ होगी उन सबको सम करेंगे तो आपको टोटल ईएमएफ मिल जाएगी पूरे कॉइल की।
इफ द कॉइल इज टाइटली वाउंड, बहुत क्लोजली वाउंड किया गया, बहुत क्लोजली पैक किया गया, जैसे मोटर की वाइंडिंग होती है, so that the same magnetic flux phi b passes through all the turns. तो अगर बहुत टाइटली पैक की गई वाइंडिंग को, तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो पूरे कॉइल के ऊपर सेम होगा, और उस सूरत में आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगी कॉइल पे, वो होगी बराबर -n डी फाई बाई बी ओवर डी टी। तो ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लेंजिस लॉ वाला ही है, सॉरी फैराडे लॉ वाला ही है, और n आ गया नंबर ऑफ कॉइल्स, एक से ज्यादा कॉइल के लिए। Here are the journal means by which we can change the magnetic flux through a coil. तो हम किन किन तरीकों से मैग्नेटिक फ्लक्स को कॉइल पे चेंज कर सकते हैं। तो पहला तो है चेंज द मैग्नीट्यूड बी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल, यानी कि आप अपनी कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कर दें तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। दूसरा मेथड है चेंज आइदर द टोटल एरिया ऑफ द कॉइल, या तो पूरे के पूरे कॉइल का एरिया, और द पोर्शन ऑफ दैट एरिया दैट लाई विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। या तो आप जो आपका एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सपोज हो रहा है उसका टोटल एरिया ही चेंज कर दें, या उसका कुछ पोर्शन चेंज कर दें, तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और इसकी एग्जांपल है बाय एक्सपेंडिंग द कॉइल और स्लाइडिंग इट इनटू और आउट ऑफ द फील्ड। या तो अपने कॉइल को आप एक्सपेंड कर दें स्प्रिंग की तरह, या उसको स्लाइडिंग करें फील्ड के अंदर अंदर बाहर करके, जब भी आपकी फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। थर्ड है चेंज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो आपने कॉइल रखी हुई है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ और प्लेन ऑफ द कॉइल, उन दोनों की डायरेक्शन को चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल बाय रोटेटिंग द कॉइल so that the field B is first perpendicular to the plane of the coil and then is along to that plane. तो ये तीन मेथड्स है जिनकी मदद से आप अपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं कॉइल के अंदर। एग्जाम्पल the magnetic field between the poles of the electromagnetic in the figure 29.5 is uniform at any time. तो आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के दो पोल दिए हुए, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और इन दोनों के दरमियान आपको कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और डायरेक्शन उसकी नॉर्थ से साउथ पोल। बट its magnitude is increasing at the rate of 0.020 टेस्ला पर सेकेंड। लेकिन आप इस कॉइल की जो फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं
विद द रेट 0.020 टेस्ला पर सेकंड के रेट से। The area of the conducting loop in the field is 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपने इस फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है जिसको आपने मीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये सर्किट बन गया, यानी कॉइल मीटर के साथ कनेक्ट होकर पूरा एक सर्किट बन गया है। तो ये जो कॉइल है इसका जो एरिया है वो है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग द मीटर इज 5 ओम, और इस पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम। पार्ट ए, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ एंड द इंड्यूस करंट इन द सर्किट। आपने इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो इस सर्किट में प्रोड्यूस हो रही है वो पता लगानी है। एंड द पार्ट बी, if the loop is replaced by one made of an insulator, what effect does lie this have on the induced EMF and induced current? कहते हैं कि जो कंडक्टिंग लूप है इसको अगर आप एक इंसुलेटर से रिप्लेस कर दें तो बताइए फिर आपके वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने पार्ट ए की तरफ आते हैं और इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पता लगाते हैं। तो ये आपकी कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस है और प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर है। तो हमारी जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो होगी वर्टिकली अपवर्ड। और वर्टिकली अपवर्ड हो गई तो इसका मतलब है कि जो आपकी फील्ड और जो एलिमेंट ऑफ एरिया है उन दोनों के दरमियान जो एंगल हो गया वो 0 हो गया या सेम डायरेक्शन में हो गए। तो आपका जो ये कॉस 0 होगा ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास इस लूप के अंदर जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा फाई बी बी ए। एरिया आपके पास गिवन था 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने मीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया तो ये आ गया 0.012 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये बराबर होगा डी फाई बी अपॉन डी टी, और फाई बी बराबर है बी ए के। तो बी ए आ गया यहां पे। एरिया कांस्टेंट है तो वो हमने डिफरेंशियल से बाहर निकाल लिया। तो ये डी बी अपॉन डी टी ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें गिवन है 0.020 टेस्ला पर सेकेंड। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 0.020 से, और एरिया को गिवन है 0.012 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 0.24 मिली वोल्ट। ये तो आ गई इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ। वोल्टेज के लिए सिंपल हम V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहां V को हमने इंड्यूस ईएमएफ से रिप्लेस कर दिया तो I बराबर हो गया वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्ट आपको गिवन है
रेजिस्टेंस आपको सर्किट गिवन है 5 ओम, तो करंट आ गया 0.048 मिली एम्पियर। ये आपके पास आ गया इंड्यूस करंट। अब पार्ट बी की तरफ आ जाए कि जहां पे वो कहता है कि आपकी जो ये कंडक्टिंग लूप थी इसको इंसुलेटिंग लूप से कन्वर्ट करने। तो आपको पता है जो इंसुलेटर होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, और अगर एक आइडियल इंसुलेटर है तो उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। तो जो फैराडे लॉ है उस लॉ के अंदर रेजिस्टेंस का फैक्टर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। उसके लॉ में तो फ्लक्स है, तो वो तो बिल्कुल उसी तरह चेंज होगा जिस तरह कंडक्टिंग लूप के लिए चेंज होगा। तो ईएमएफ की अमाउंट तो वही प्रोड्यूस होगी जो कंडक्टिंग लूप के अंदर हो रही है। यानी कि चाहे इंसुलेटर हो चाहे कंडक्टर हो, ईएमएफ दोनों में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फैराडे लॉ रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। वो रेजिस्टेंस की बात नहीं करता, वो तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल वो बराबर होगा ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल। तो ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आपके वायर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, या वायर या जो इंसुलेटर है उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो आपका करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। इस सिचुएशन को अगर मैं कंपेयर करूं आइसोलेटेड बैटरी से, जो मैंने आपको बताया था जब ईएमएफ को हम पढ़ रहे थे, कि अगर हमारी बैटरी के टर्मिनल ओपन हो या वो किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट ना हो, तो उसके अंदर टर्मिनल्स के ऊपर ईएमएफ तो मौजूद होगी लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो नतीजा ये निकला कि चाहे कंडक्टिंग वायर हो चाहे इंसुलेटर हो, ईएमएफ दोनों में इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, लेकिन करंट प्रोड्यूस इंसुलेटिंग मटेरियल में नहीं होगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, या इनफाइनाइट अगर आइडियल इंसुलेटर है तो वो करंट उसका जीरो हो जाएगा। चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।